Okay. Yeah. Shall we begin? इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है that can brief is very long. Definitely जो भगवान की इंस्ट्रक्शन है भगवद गीता में हम उसका रिव्यू देते हैं that you should remember Krishna and whoever it is. So these are many examples of that. So I got to this introduction. And I was telling you Prabhuji का introduction देखेंगे it just symbolizes the instruction of Krishna that नाम उसमें लिखा है that Prabhuji is so much excelling in his professional life. But at the same time, he is also a very nice devotee. प्रभु जी के जो skills हैं जो उनसे जो qualification इकट्ठी करी है, तो प्रभु जी is very nicely using the service of his call. Just प्रभु जी का आज का भी schedule देखें, प्रभु जी had 3 programs, इसका मुझे पता है प्रभु जी gave a class in the temple in the morning. Then before coming here, प्रभु जी का NIIT के auditorium में session था, जहाँ पे I came to know around 45 minutes का प्रभु जी का session था, and then 15 to 20 minutes students were asking questions. और ऐसा था कि बाद में curtain करना पड़ा, उनको stop करना पड़ा, because प्रभु जी की humility, प्रभु जी का clarity थी, जो first में प्रभु जी was very nice. Students were like deeply touched by that. And coming to Prabhuji's introduction, so Prabhuji was previously Prabhuji had held full-time faculty had a full-time faculty appointment of ecology and computer science at the Tata Institute of Fundamental Research. He had visited appointments at University of Washington, Seattle, Stanford University, and IIT Bombay. Prabhuji did his bachelor's BTech from IIT Bombay, and all of you know Prabhuji scored rank 1 J means J advanced and J means so rank 4 in means and rank 1 J advanced. So definitely, and then Prabhuji did his master's, MS and PhD from Stanford University, everything was in electrical engineering. Or Prabhuji has been working in many any startups, and he himself has a startup with the name Ageti Learning. Prabhuji's maternal side belongs are from Vrindavan. So Prabhuji, whenever he's traveling or whenever he's not traveling, so he actively is doing research in the areas of philosophy, social psychology, linguistics, and history. And while traveling, like he's right now traveling, he is traveling, but he's also sharing whatever he has learned in Krishna consciousness. And he also, like Prabhupada, started a magazine named Bhakti Global. So Prabhuji is a member of BPG India editorial board, and he is involved with the academic affairs of Bhaktivedanta Research Center. I think some of us related also in Vrindavan. So and he under the guidance of his holiness Bhanu Swami Maharaj, he is involved in editing of the Sanskrit into English translations, and it will go on and on and on. So such as the glories of Vaishnava. And if you want to know more about Prabhuji, so Prabhuji's Puri has a website, the name himanshuasmani.com. So everyone knows him by the name of Himanshu Asmani, but in the spiritual circles, Prabhuji is known by the name of his great Harivamsh Prabhuji, that Prabhuji has taken formal initiation in the body of Vaishnava Sampradaya. So these are the glories of devotees. So we are very fortunate that Prabhuji kindly agreed to accept our invitation. Prabhuji has come to this teaching base center to give us the association. My request is after this the maximum benefit that you hear nicely. If you have any doubts, you can ask Prabhuji. So Prabhuji is there. And Prabhuji, I came to know is traveling tomorrow to US. So अब मेरी एक दिन का चले इतने hectic program is following just for sharing whatever he has learned. So this is what is expected out of leader, and Prabhuji is a living example of that. So I would like to welcome Prabhuji by loudly chanting one day Hare Krishna Mahamudra.
हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शंकरोति वाचालं संपूर्णं वेदितुं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. Thank you, Tarun Prabhu, for kind introduction. Thank you for giving me opportunity to be here. I'm so very honored to be amidst the deities, amidst all of you. We are talking about the importance of association, Sangha, isn't it? Let's keep spiritual life aside. Even in life, whatever we want to achieve, we need a narrative. We need a mahol, isn't it? Can you study for IIT in a IPL match stadium? Not possible. And even the IPL people, folks who are playing and hitting in 2020, whatever, they need a mahol of cheerleading, isn't it? Without cheerleading, they'll say, oh, who will go into it? Isn't it? We all need enthusiasm, encouragement, and a bulwark of that enthusiasm and encouragement is created by the ambience. Somebody wants to start a company, have entrepreneurship skill, utilize the entrepreneurship skill. Where they go in US, they go to the Silicon Valley because that's the culture, isn't it? Incubators, they call it. People who want to start company, they go to Y Combinators. Have you heard about these? वहाँ पे क्या उन्हें ट्रेनिंग मिलती है। जो लोगों को नॉवेल लिखना होता है, you know, मैंने तो it took me like 3.5 years from first writing the first word to the publishing, which now got out. But I have heard people go to retreats और वहाँ पे टीचर्स बैठे होते हैं, सेम स्टूडेंट्स होते हैं, फिर उन्हें ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है. नाउ यू राइट फर्स्ट स्टोरी, सेकंड पैराग्राफ, हाँ, पुट द
love scene in the 30th page, हाँ put the fight in the 67th page, literally training. फिर उनको ऐसी भी training दी जाती है, which my brother told later on after we released our book, that you know what they are trained? They are trained that they catch 50 people. All of you, first day you click on Amazon because that will increase the rating. तो सब धांधलीबाजी चल रही है. But मुद्दे की बात क्या है? You need a माहौल to do anything. Why we need the माहौल or the ambience? Because goal, whatever goal we set, that needs some cushioning. कोई भी ध्येय, लक्ष्य जो हम स्थापित करते हैं, उसको पहुंचने के लिए एक we need a cushioning so that because in this world the world is now more or less becoming a world of dejection and kind of disencouragement. Whatever doesn't go up goes down. सत्व आपने सुन रखा होगा, हमारे 3 मोड्स होते हैं, सत्व रजस तमस. सत्व को उसकी लात पकड़ के खींचने के लिए रजस और तमस बैठे हैं. सत्व ऊपर जाएगा, रजस एक लात पकड़ेगा, तमस दूसरी लात पकड़ेगा. इट्स वेरी रेयर टू बी इन द स्टेट ऑफ सत्व. And sattva means little enthusiasm, sort of encouragement, but rajas and tamas are like pulling it down. So इसलिए you need cushioning. इसलिए people want to have that particular ambience in which अब स्टार्टअप की बातें होंगी तभी तो स्टार्टअप खुलेगा. अब कोई बैठ गया डिस्करेज करने के लिए, नहीं कैसे करोगे, फाइनेंस कौन रेज करेगा, who will execute, are you sure about yourself, and the person will doubt it. यहाँ पे हम रामायण का एक बहुत अच्छा चित्र है, isn't it? A beautiful picture in which I think in the front there is whom? There is Sugriva and the golden Vanara is Hanumanji. But I am not seeing here Jamban. Well, there is Jambavan in green. So we all need Jambavans, right? It was Jambavan who reminded whom? Hanuman of his strength. Hanuman had forgotten. So a way, now I don't know how to find Jambavan, but one way of having Jamban is to create that mahol. Maybe one Jambavan may not be enough, because Jamban तो Jamban थे, इतना enthusiasm भर दिया हनुमान जी में, बोल याद आ गए. क्योंकि encouragement is a rare commodity these days ना. बहुत लोग टाइट लिप्ट होते हैं encouragement के बारे में, ज्यादा लोग प्रोत्साहन नहीं देते हैं. हाँ ठीक है कर लेंगे. अब कोई कुछ काम करते तो बोले हाँ तुम्हारी खुजली रही होगी, कर लिया. व्हाट डू यू मीन खुजली रही होगी? किसी ने बुक लिख दी तो कोई बोलेगा हाँ तुम्हारी खुजली रही होगी. Somebody goes to preach in some place, हाँ तुम्हारी खुजली रही होगी. Not खुजली, but that person who is saying खुजली is very miserly in giving what? Encouragement. But the mantra for today should be encouragement. Encourage the heck out of everyone. इतना encourage करो वो उछलने कूदने लग जाए, क्योंकि उसको encourage होने के बाद वो तुम्हें भी मदद देगा. Whatever appreciates. Whatever you appreciates. So if you appreciate somebody, they will appreciate you. इसी के लिए we need what? माहौल. अब जिन्हें पीना होता है तो या तो उसको PhD करें कि उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या है, या फिर बार में जाके बैठ जाए. Isn't it? Automatically they'll pick up. Why? Because many things are actually sort of inspired rather than being explicitly taught. है कि नहीं? We catch things. हम पकड़ते हैं बहुत चीजें जिनके हम संग में रहते हैं. बहुत रेयर होते हैं जो इतने बौद्धिक होते हैं, इतने बुद्धि, इतना ग्रे सेल्स एंड ऑल द मैटर इज देयर दैट दे अपने में ही रहते हैं. वो दे ट्राई टू फिगर आउट एवरीथिंग ऑन थ्रू देयर मेंटल प्रोवेस. बट मोस्ट ऑफ अस नीड cushioning, माहौल. So whatever is the prayojan needs a complementary ambience. Ambience, right? Ambience means माहौल. अब किसी की शादी हो रही है और माहौल ऑफिस का है, ridiculous. या फिर किसी का मातम हो रहा है और पार्टी हो रही है, doesn't make sense. Everything has one of the first story which I wrote in this book, I compared the Indian crematoriums to US crematoriums. US में they call it columbariums. Now columbariums क्या होते हैं? If somebody dies, they
जैसे दीवार में, ये कोविड में तो आपने देखा होगा, फर्नेस होता है, उसमें बॉडी डाल दी जाती है अंदर जाके. My uncle also had this fate, unfortunately. So in US, what happened? That's a very normal phenomenon. एक छोटा सा रूम होता है, उसमें furnace होता है. You put the body inside, the body goes and burns. उसके remnants होते हैं, फिर उसे एक आलीशान उसके लिए altar बना दिया जाता है. तो कहते हैं columbaria. वहाँ पे उस आदमी की nice hockey stick will be there, his nice cap will be there, maybe his favorite Belgian chocolate is there, and Colombian coffee is there. ये उनका स्मारक है. और फिर और जगह क्या है? नाइस लॉन्स, टीवी, मैगजीन्स, वेंडिंग मशीन. आदमी को फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आएगा ही नहीं वहां पे. डेथ के पास वी आर सपोज टू बी डूइंग व्हाट? थिंकिंग अबाउट बिगर क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, इजंट इट? इसलिए इंडियन क्रेमेटोरियम्स आर गुड. चील ऊपर चल रहा है ना, सांप वाप रेंग रहे हैं, सब जल रहा है. यू फेस द नेकेड ट्रूथ ऑफ लाइफ. उससे वैराग जागृत होता है, क्योंकि क्रेमेटोरियम की प्लेस इज फॉर व्हाट? वैराग, इजंट इट? सम डिटैचमेंट कम, नॉट डिटैचमेंट टू लीव एनीथिंग, but detachment to get a perspective that things are temporary, isn't it? So am I really asking the good questions which I should be asking or not? But this won't appear in columbariums, right? So if for a goal like startup or company, cricket, gymming, you need an MBS, how much so it must be true for spiritual truth, isn't it? इसे संस्कृत में कहते हैं प्रयोजन. क्या कहते हैं? Which means goal. And the loftier your goal is, the more tight knit should be the mahol, isn't it? Why? Because as I told, whatever doesn't go up goes down. We are being pulled by media outside, by the environment outside, and so much so it is true about spiritual life. क्यों कर रहे हो? ऐसे तो प्रश्न पूछते हैं लोग. एंड जबकि अगर इंटेलेक्चुअली देखा जाए तो पीपल डू many people do many crazy things in the name of non spirituality and they question spirituality. जब हम आईआईटी में थे तो एक रूम में गए, एक हमारे मित्र थे who got second 2-digit rank in IIT and पहले दिन तो मस्त टीका था और रूम में देवी देवताओं के पिक्चर्स थे. कुछ समय बाद कुछ और देवियां आ गई उसमें, टीका चला गया, लिंकिन पार्क और मेटालिका की टी शर्ट आ गई, सब काला काला, नहाया कब पता नहीं. दाढ़ी वाड़ी आ गई, आजकल तो दाढ़ियों का बहुत सीजन है. जिनको अपने ट्रेडिशन के थ्रू रखनी है दैट इज फाइन, बट इट्स अ ट्रेडिशन, इट्स अ काइंड ऑफ हु इज लीडिंग द शो. जैसे सिखिज्म में तो ट्रेडिशन होता है, बट in other places who is leading the show? Virat Kohli, isn't it? They are doing, so people may be following it, isn't it? तो अब उन्होंने पता नहीं किसको पकड़ा, बट लिंकिन पार्क और मेटालिका को पकड़ लिया. So I went to his room and I was seeing cobwebs all around. Cobwebs मतलब मकड़ी के जाले. मैं कुछ सफाई वफाई करो. नॉट नीडेड, मुंबई में बहुत मच्छर है, अपने आप उलझ जाएंगे उससे. नाउ अब उसने चैलेंज नहीं की स्पिरिचुअलिटी, बट such people who do nonsense in the name of non-spirituality have guts to sometimes challenge, and most of the times challenge spirituality. Isn't it insult to intelligence? Who is living a cleaner, purposeful and meaningful life? जो बाहर के लोग हैं आजकल पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम पे क्या कहते हैं? Nothing is sacred. There is no truth. Only my experience holds. तो जो मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा. हाँ, बट क्या होता है? क्योंकि there is no foundation. When the life shakes them, then what is the solution? पंखा या सीढ़ी. It's very unfortunate because कोई फाउंडेशन नहीं है ना. यहाँ पे साइंस की फाउंडेशन भी वो तोड़, they throw it out of the window. Oh, there is no truth. See, they have gotten backlash because of world wars and things like that. So they have lost faith in science.
but then they have lost faith in tradition also, and religion also, and spirituality also. So what happened? Faith in God, nothing. जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा. So when such forces are around us, and our goal is so huge, isn't spiritual truth a worthy and a bigger goal in life? Because that we are reaching our truest potential. अब मैं हवा में truest potential नहीं बोल रहा. आजकल self motivation talk में ऐसे बहुत words फेंक दिए जाते हैं. truest potential का मतलब क्या? एक तो body का potential है. और body का potential कितने साल तक? 40 साल तक, 50 साल तक. उसके बाद जैसी राधे. Nowadays 40s are the new 50s. अभी से लोगों को कमर दर्द हो रहा है. Heart attacks are happening in 30s and 40s, isn't it? तो बॉडी के थ्रू ट्रूएस्ट पोटेंशियल थोड़ा डाउट लगता है. माइंड कुछ भी रैंडम थॉट्स आते रहते हैं. We get influence from surrounding, but our spiritual nature, which is Satchidananda, which is Chit. Chit means full of knowledge, full of eternality, lies beyond mind and body. So उसको realize करना is really a worthy goal. So it's the truest potential, it's the long-term potential, isn't it? तो इतना बड़ा गोल और इतने डिस्ट्रैक्शंस, और हमारे मैथ के टीचर थे वो कहते थे ऊल जलूल काम करते थे. तो इतने ऊल जलूल ओपिनियंस वी कीप हियरिंग, isn't it? शाहिद कपूर सेड सो मैं वीगन बन गया. भैया वो वेजिटेरियन बन जाएगा, नॉन वेजिटेरियन बन जाएगा, तो तुम भी बन जाओगे. So somebody else is ruling and dictating, mostly politicians, cricket players, and Bollywood. Nowadays Tollywood is coming. Mollywood is coming. Malayalam को पता नहीं क्या बोलते. And my friends were telling that now they release everything in like so many languages. आ जाओ, सब जगह बाण मार रहे हैं. It's like not one Ravanas, but many Ravanas. If they teach us well and good, but most of the time they weaken our heart's resolve to practice genuine spirituality, isn't it? यही तो है काम. अभी सबसे ज्यादा हमारे हृदय को कौन इन्फ्लुएंस करता है? Actually, if you see in the society, it's web series and movies. Why? Because Drishya and Shravya, the medium which captures Drishya and Shravya, can really capture our hearts. जो देखा जाता है, सुना जाता है कि नहीं? लोग देख के आते हैं और 15 दिन सोचते रहते हैं केरला स्टोरी में क्या हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, है कि नहीं? तो चलता ही रहता है. कश्मीर फाइल्स के बाद और फाइल्स होती है दिमाग में. It's good if it's educative, but let's see the after effects, how much it is gripping our hearts, isn't it? तो इन चीजों से शील्ड करने के लिए we need a strong संघ, and that is what our acharyas have repeatedly. जय वैष्णव से और वैष्णव सत्संग आचार है ना, ऐसे महाप्रभु कहते हैं. One who does satsang. Satsang means satam sangha. Sangha means association. Satam means who are devotee. Now that doesn't mean we have to stop outside. Blinders लगा दूंगा और कोई दिखे नहीं. Devotee हो, give your biometrics. Doesn't work that way. We have to interact with society. But we don't have to be afraid. Arey, we all know where we'll put our hearts and where we'll not put our hearts. We can do business dealing and professional dealings with others, but heart should be where? It depends where your prayojan is. Prayojan means goal, and when I say prayojan, it means the biggest vector of your life. You know vectors, vector पढ़े होंगे, vector calculus, and so biggest vector is spiritual life. Then there are छोटा मोटा vectors around, which are all aligning. छोटा मोटा vectors like पेट साफ होना चाहिए, सुबह खाना अच्छे से होना चाहिए, थोड़ा जॉब ठीक होना चाहिए, ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए. These are important, but they have to be aligned where? Spiritual vectors. And this alignment can happen where? In a माहौल. बाहर वाले तो जाएंगे ये वेक्टर क्या है, काट डालो इसे, उल्टा कर दो. But here devotees say प्रभु गलत हो रहा है, इधर होना चाहिए. तो ऐसी कितनी कथाएं हमारे भागवत में आती है. एक कथा है महाराज भरत की. यो दुस्त्य जान दार सुतान हृदय स्पृशः
जहौ युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसा। उनके में उत्तम श्लोक कौन है? भगवान का एक नाम है, क्योंकि उनको उत्तम श्लोकों से उनको गाया जाता है। उनकी लालसा के कारण क्या हुआ? उन्होंने सबको मलवत त्याग दी। मलवत त्याग, मलवत हम जानते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? ही गॉट अटैच टू अ डियर। एक छोटा सा मदर डियर वाज देयर, शी वाज प्रेग्नेंट, शी वाज जंपिंग अक्रॉस द रिवर, feared by a tiger. Suddenly she had a miscarriage. The baby fawn, right, fell into a river. And then what happened? Bharat took pity. Since Bharat took pity, he started spending more and more time. And then फिर वो इतना अटैच हो गए कि अपनी पूजा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके ठाकुर जी के बारे में चिंता नहीं है। किसके बारे में चिंता है? डियर के बारे में। और फिर डियर जी चले गए और भरत उनको याद कर करके, ऑफ कोर्स ये तो लीला हो रही है, सच ग्रेट पर्सनालिटी टीचिंग अस, बट हमारे लाइफ में भी बहुत डियर लोग आ सकते हैं। That dear could be WhatsApp, that dear could be a dear person, that dear could be IPL, that dear could be something else to remove us out. इसलिए आचार्य कहते हैं, had भरत महाराज, if he had association, somebody would say, प्रभु ज्यादा हो रहा है, डियर को अपने स्थान पे छोड़ दीजिए, बड़े हो जाएगा। आप भाव स्टेज तक पहुंच गए थे, you had reached such a high stage, doesn't befit you. And we see what happened, right? He became what in next life? What's that shlok? Yam yam smaran saran bhavat tyajan tyante kalevaram tam tam evaiti kaunteya tadat bhava bhav। वही बनते हैं। सिंपल इक्वेशन है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं। सो एसोसिएशन होती तो प्रिवेंट हो जाए। चैतन्य महाप्रभु भी जब वृंदावन आए तो उनके साथ एक असिस्टेंट दिया हो। पहले वो मान नहीं रहे थे, क्योंकि पहले एक और दिक्कत हो गई थी। जब वो साउथ इंडिया गए थे तो उनके साथ थे काल कृष्णदास, और काल कृष्णदास अभी स्वयं भगवान के साथ है। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु इज नन अदर देन राधा कृष्ण, नाही अन्य। एंड देयर वर सम जिप्सीज फोक्स, देयर होल मॉडस ऑपरेंडी इज नाइस पर्सन को अट्रैक्ट करो थ्रू सम सोसाइटी गर्ल्स एंड देन यूटिलाइज देम इन देयर सर्विस। तो काल कृष्णदास को अट्रैक्ट कर लिया, महाप्रभु चोटी पकड़ के लेके आए। तो ऑलरेडी महाप्रभु हैड अ बैड एक्सपीरियंस। Why? Because Kal Krishnadas, again that same equation, even with Chaitanya Mahaprabhu, maybe he was not associating properly and he was doing association of some other mahol which was not good. He got attracted. Then Balabhadra Bhattacharya was sent to Vrindavan. अब देखिए funny story. Some people come to Mahaprabhu and said, Mahaprabhu, Krishna दिख रहे हैं. We are seeing Krishna in the Yamuna. Mahaprabhu said, really? What happened? Arey, every night we see hoods of Kaliya and Krishna dancing on. Chalo chalo देखने चलते हैं. So Mahaprabhu is like, okay, he knows the thing. Yeah, up to you. They went. Now just imagine, जब चैतन्य चरितामृत में this episode comes, few verses पहले बलभद्र भट्टाचार्य is praising Chaitanya Mahaprabhu. You are Krishna, you are the Supreme Lord. अब वो उनको भूल के he also tells, मेरे को भी कृष्णा देखना है। Can you imagine? You already are saying to Chaitanya Mahaprabhu few verses before that you are a Krishna. Now where does the second Krishna come? And Mahaprabhu doesn't know if he is Krishna. But because perhaps he associated too much. And you know what happened? Some person, Mahaprabhu told him, it's not like that. The scriptures have told Krishna doesn't come like this. So better you not go. Finally, a person comes and tells, this is all fluke. There is this machwara or fisherman, he goes every night. He maybe lights a bidi or whatever, I don't know, he lights some lantern. And because of the waves, the boat appears to be like hoods of Kaliya and the fisherman looks like to be Krishna.
जब चैतन्य महाप्रभु के साथ के एसोसिएट के साथ हो सकता है, तो हम कौन से खेत की गाजर मूली बैंगन है कि नहीं? Isn't it? So इसीलिए it's not hyperbole, it's not exaggeration, but we have to remain in association. Or we feel strength in our hearts. In fact, whenever we are weak, the moment we come in association, we get strength, isn't it? And that strength is not intellectual strength. It just rubs off from somebody else. So we all now understand the importance of association. But what to do in association, that's also important. Few things, and these are very important things here with rapt attention. First, focus on the spiritual and as much possible overlook the material. Oftentimes, हम जब भक्तों के साथ associate करते हैं, because we are coming from outside, we have some conditioning, some notions, right? यार ये पेस्ट ऐसे क्यों करता है, ऊपर पहले क्यों करता है, नीचे क्यों नहीं करता है, पेस्ट को ऐसे दबाता क्यों है? सब लोग की इडियोसिंक्रेसीज होती है ना, राइट? यहाँ पे आ रहा है आज दाढ़ी क्यों नहीं शेव? अच्छा, इसकी मूछें बड़ी क्यों है? मैं आपको देख के नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसे रैंडम प्रश्न होते क्योंकि हमारी भी कंडीशनिंग है। चैतन्य चरितामृत में एक ऐसा गजब एपिसोड है, प्योर डिवोटीज के बीच में भी ऐसा एक एपिसोड दिखाई टू इंडिकेट कि हम किस खेत की बैंगन है। देखो, बैंगन इज बेगुण, तो खा सकते हैं, जस्ट टेलिंग, इट्स कॉल्ड बेगुण एंड मेनी पीपल अवॉइड बाय द वे। So what happens? But when it is offered to deities, it is transferred. So Chaitanya Mahaprabhu was in Gambhira, and लोग दौड़ के आए और ये गोपीनाथ पट्टनायक को चांगा पे डाल दिया। चांगा क्या होता था? जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में गियोटिन होता था, उसमें ऐसे बना रहता था, उसमें गला रख देते थे, ऊपर से खट खट मुंडी अलग। तो ऐसे चांगा होता था जिसमें से तलवारें रखी होती थी और आपको स्टेज पे डाला जाता था और धक्का। तो गोपीनाथ पटनायक इज प्योर डिवोटी, ही इज ब्रदर ऑफ रामानंद राय। रामानंद राय तो महाप्रभु के अंतरंग है, इजंट इट? अब दिक्कत क्यों हुई, क्यों चांगा पे डाला? क्योंकि गोपीनाथ पटनायक was the tax collector of Malajaya. I'm forgetting the name of the place. He was a district collector, and first some extra money had gotten collected and he didn't pay that to whatever the tax collector. So he used it. Now somebody complained it to Prince, and who was Prince? Purushottam Jana, pure devotee. It's Purushottam Jana only who had sent the deities of Radharani to Vrindavan. Now Purushottam Jana was called, and Gopinath Patnaik told that अभी मेरे पास धन कम है, मेरे पास बहुत अच्छे घोड़े हैं, you just put a good price of them and take it on loan, बाद में I will do the bharpai. And you know who is father of Purushottam Jana? Prataprudra. So पुरुषोत्तम जना, ये सब प्रतापरुद्र के बारे में पता है आपको या जस्ट मैं कह रहा हूँ? ओहो, चैतन्य महाप्रभु के विषय में we don't know much. Okay, chalo, I'm just giving historical names also, so take it that way. Prataprudra was the king of Orissa, and he was a great devotee of Krishna, Jagannath, and Chaitanya Mahaprabhu. So of course a pure devotee. His son is Purushottam Jana. Purushottam Jana, Chaitanya Mahaprabhu के बारे में तो सुना ही होगा. So Purushottam Jana was the one who got dream of Radharani. Radharani telling that Vrindavan में alone Krishna is standing. You send deities of Radharani. Quite औकात वाले भक्त हैं यहाँ पे. तो अब पुरुषोत्तम जना को बुलाया गया किसने? गोपीनाथ पट्टनायक. Again a historical personality, and he was also pure devotee. It is said he was avatar of one of the Pandavas. So गोपीनाथ पट्टनायक said what? घोड़ों का अच्छा दाम है. अब हमारे पुरुषोत्तम जना को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कम दाम लगाया. So now there should be discussion, right? If you increase the dam. But Purushottam Jana had an idiosyncrasy. You know what was the idiosyncrasy? He would look at the sun and turn like. होता है ना कभी कभी हम में
This mental things we have, like we'll touch the table, then we touch again. Oh, even हो गया, odd, next, even. होता है? Some people sometimes walk and they come back. देखा है? Even odd. OCD देखा है? Obsessive compulsive disorder साफ करते रहते हैं लोग, या अंगूठे चबाते रहते हैं, बहुत चीजें होता है, राइट? जब मैं आईआईटी की पढ़ाई करता था, एक होता था जो लिखता था, तो लिखने के साथ वो पूरा ऐसे घूम जाता था जिबान के साथ अंदर. Like the tongue will twist completely. I was thinking, are you gobbling up the paper or what? Everybody of us have idiosyncrasies. Some are so particular on time that if nobody comes on time, they'll slap on you. They're so like dictatorial about time. So ऐसे घूम रहे थे, ऐसे आ रहे थे. अब इस पे हमारे गोपीनाथ पटनायक became non-linear. He said, हाँ तुम ऐसे करते हो, मेरे घोड़े ऐसे नहीं करते, इसलिए उनका दाम अच्छा होना चाहिए. तुम ऐसे कर रहे हो, मेरे घोड़े ऐसा नहीं करते हैं, तो they should have a better price. अब इसी पे ही जय श्री राधे, इसी पे ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया. Although these were the Leela pastimes and teaching us what? That we should not fixate ourselves in association on material things. है कि नहीं? Spiritual association is about spiritual things. Just see that the person next to you is taking shelter of Krishna consciousness. He is one of the most special personalities as compared to the outside bheed who are not taking Krishna consciousness. So even though अभी सबका शुद्धिकरण हो रहा है, सबकी चित्त शुद्धि हो रही है, सब नहा रहे हैं, तो overlook the material things, focus on the spiritual. This is the first way to associate. Second way of association is encourage as much as possible. Encourage the heck out of everyone. Not false praises, but half praises नहीं. Half praises क्या है? प्रभु क्लास तो अच्छी थी, लेकिन ये नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, अरे फिर प्रेज ही क्यों किया? Sometimes ऐसे होता है, प्रभु थोड़ा क्लास देना. हाँ, क्लास के बाद तुमने मुझे क्लास देने को बोला, उसको मेरे को धो रहे हो. Sometimes ऐसे होता है कि we ask somebody to do something for us, and instead of being thankful, we do what? Dhulai. That's not the way. Already world is so lack on encouragement and appreciation, and in our goal is so high, we need all the more utsaha, isn't it? That's why we have these Spurti camps and Sankalp camps, so that we all come together. So that's the second thing. Encourage the heck out of everyone. And third is serve. कुछ छोटी से छोटी सेवा कर दो. And this is what Rupa Goswami is indicating in Upadeshamrit. Rupa Goswami's name we have heard. He is one of the great teachers. And he quotes a very nice verse from Niti Shastra. Niti Shastras are the Shastras of ethics. He uses that ethics and kind of presents it in bhakti literature. What is that verse? Dadati pratigranati bhuyam apyati pritchati bhumte bhojayate chaiva shadvidha priti lakshanam. The signs of love are 6. You offer something to eat to somebody because किसी के भी हृदय का स्थान यहाँ से है. मस्त पिज्जा खिला दो, फिदा हो जाएगा, पेट से है. So you offer and you take prasadam. Then you offer gifts and you accept gifts. And you sit and reveal your mind in confidence. खाना वाना तो बाहर भी हमें कॉन्शियस रहना है, क्योंकि वहां पे क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, नाक साफ करके चनाचोर गरम बनाते हैं. ऐसा होता है बहुत बार, मार्केट में हमने देखा. पूरा निकाला और फिर उसी से चनाचोर गरम, लोग मस्त खाए जा रहे हैं. तो घूमते भोजयते चैव, तो हमें कॉन्शियस रहना है. गुह्यम आख्याति पृच्छति तो प्रोफेशनल के अलावा नहीं करनी, क्योंकि हृदय नहीं खोलना है. If you open our heart, some other things will enter. Why? Because generally spirituality is not the biggest vector of others' life, right? So for professional we can deal, but guhyam akhyati pichyati, confidential heart-to-heart sharing must be avoided. And then what is there? Dadati prati granati हम कर सकते हैं वहाँ थोड़ा बहुत. Momento लिया, momento दिया, that's still fine.
So these are the three ways we can associate. We understood today the importance of association. Why? Because our goal is very lofty. Even for small goal, we need mahol. So for a loftier goal, we need a much more thicker mahol. Once we come in mahol, what we do? Three things. We overlook the material and focus on spiritual. Second, we encourage the heck out of everyone. Encourage spiritually. Somebody is going through tough times, encourage him, not like कह रहे थे हम आपको कह रहे थे, है ना? कभी कभी हम, कौन सा टोन है ये? कह रहे थे हम आपको रात को जल्दी सोना चाहिए. भाई ऑलरेडी उसे दिक्कत हो रही, थोड़ी एनकरेजमेंट करो उसे. जस्ट हेल्प हिम. पीपल आर स्ट्रगलिंग, नॉट लाइक हिटलर की तरह चढ़ गए. Isn't it? Then the person morale gets down, right? And what is the third thing? Serve. Serve. कैसे? Offering and giving gifts, offering and giving prasadam, and revealing and sharing and hearing in confidence. But अगर confidence में सुनो ना तो उसे घुमाना मत. प्रभु किसी को बताना नहीं. पहले यही कह देते हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज बता रहा हूँ, आपको बताना नहीं है, उसके साथ ये हो रहा है. फिर वो दूसरा पर्सन ऑल्सो दूसरे को बोलेगा अपना छोप डाल के. तो व्हाट बिकम्स इज अ चाइनीज विस्पर प्रॉब्लम. कुछ बोला, कुछ और आया. इट ब्रेक्स द हार्ट. देन डिवोटी से यहाँ तो कोई ट्रस्ट ही नहीं है, लव एंड ट्रस्ट ही नहीं है. मैं किसी से कॉन्फिडेंशियली बात कर रहा हूँ और पूरी इट्स बिकम अ टॉक ऑफ द टाउन. ऐसा नहीं होना चाहिए. When we do this, we'll find really home in the association of devotees, and we'll be then having a very nice, fulfilling life, progressing towards that biggest vector, as well as aligning properly the small vectors of life. Thank you very much. Hare Krishna. I can take questions for maybe next 10 minutes and reflections. Reflection मतलब कोई विचार, something which stuck with you, or something which you didn't like, something you like. क्या अच्छा लगा आपको जो आपके साथ लेना चाहें? या तो प्रश्न या फिर रिफ्लेक्शन. प्लीज. else I'll volunteer. मैं किसी को वॉलंटियर कर दूंगा तो आप ही खुद ही. हाँ प्लीज. हाँ वाईफाई, नॉट मोबाइल, वाईफाई. क्योंकि मोबाइल में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता. आजकल लोग फोन ज्यादा नहीं करते, सब व्हाट्सएप के पीछे पड़ गए. हमारे मोस्टली काम मोबाइल भी होते हैं. कैसे? जैसे असाइनमेंट आता है हमारे क्लास. हाँ हाँ. क्लास के अपडेट होते हैं हमारे व्हाट्सएप पर. हाँ हाँ. और फिर किसी से बात करने के हम फोन करके बात करते हैं. हाँ. तो हमारा ज्यादा काम तो टेक्नोलॉजी से करते हैं. Yes, but are we really using the technology or are being used by the technology? Most of the time हम असाइनमेंट तो कर रहे हैं, बट उसके साथ में भी 40 अदर टैब्स आर ओपन. यूट्यूब पे असाइनमेंट देख रहे हैं बट 200 टैब्स और खुले हैं अलग अलग टैब के. फिर व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली जा रहे हैं. तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन अवॉइड दैट डिस्ट्रैक्शन व्हाइल बीइंग ऑनलाइन, विश यू द बेस्ट. बट अगर नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तो ऐसे मैकेनिज्म करना पड़ेगा इन विच डिस्ट्रैक्शन और हमारे बीच वी हैव डेटरेंट. डेटरेंट मीन्स रुकाव. या तो उन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दो जहां पर आपकी उंगलियां ऐसे ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है. जैसे कुछ लोगों के होता है news.google.com, उंगली पड़ती है और वो, और आजकल तो ब्राउजर इतने स्मार्ट हो गए पहले ही कंप्लीट कर देते हैं, क्लिक भी कर देते हैं कोई तो. Isn't it? So that's the necessity. Yes, we have to use it, but make sure you're not used by it. So do we need to be okay? 8 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है, 1 घंटे खाना है, 2 घंटे खाना है, 1 घंटे नेचर्स कॉल वगैरह अटेंड करना है, 10 घंटे यही है. बचे कितने? 14 घंटे. कुछ 1-2 घंटे रिक्रिएशन का होगा, ठीक है. जब वक्त के लिए होगा उसमें 4 घंटे चले गए, बचे 8 घंटे. 8 घंटे काम करने के लिए, राइट? अब उसमें टेल मी फ्रैंकली हु वर्क्स 8 hours continuously? No one, right? So then we can really judiciously use these 2 hours I'll work,
these 2 hours maybe I can spend on spiritual or other books which will expand my horizon, and there are physical books also there, right, जिसमें distraction free है. So हम ऐसे चंकी पांडे बन सकते हैं. जब हम ये ऐसे प्रोडक्टिव काम के लिए जा रहे हैं, हमारा माइंड खुद डिस्ट्रैक्ट है. हाँ, तो वो किसमें कमजोरी है? हमारे में कमजोरी है इसलिए. और पहली उस कमजोरी को ठीक करने के लिए पहले तो हमें इन बाहरी डिस्ट्रैक्शंस पे डेटरेंट लगाना पड़ेगा, है कि नहीं. और दूसरी चीज, हमें अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं एक सूत्र आपको दे रहा हूँ. इमरजेंसी के लिए नहीं है वो सूत्र. अगर फैमिली में इमरजेंसी होती है या फिर आप जैसे ट्रैवल करते हैं तो उसमें आपको यू हैव टू रिमेन कनेक्टेड बिकॉज डिवोटीज आर कॉलिंग यू एटसेट्रा. बट व्हेन यू आर इन अ स्टेबल एनवायरनमेंट, व्हेन इट इज नॉट इमरजेंसीज, then protect your sleep, which means before going to sleep and sometime after the sleep, mobiles should be off. Before going to sleep, wind down, and after the sleep, spend that time, morning hours, in spiritual practices. वो पूरे दिन भर आपको इतना स्ट्रेंथ देंगे कि you will have the viveka or the discrimination, what is important, what is not important. हटाओ, सब कॉमेडी है. ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से आता है. ये लॉट ऑफ जिम्नास्टिक्स और इंटेलेक्चुअल से नहीं आता है, क्योंकि माइंड क्या है? माइंड इज अबव आवर ब्रेन्स, बट माइंड के ऊपर कौन हु शुड सिट? इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस को शक्ति कहां से मिलेगी? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चैंटिंग पर फोकस करना ही पड़ेगा. कोई इलाज नहीं है कलयुग में. हम ध्यान के लिए नहीं बने हैं, तप के लिए नहीं बने. Our bodies in this day and age can at best perform with spiritual practice, and this is told in all traditions. गुरु नानक जी कितना कहते हैं नाम सिमरन पे, हर ट्रेडिशन, isn't it? So chanting को तो पकड़ना ही है, और एक बार पकड़ लिया तो नहीं छोड़ना. So spend some time in hearing, chanting, फिर उसके बाद you're equipped, then that 8 hours ना you'll use traditions. Does that help you, Prabhu? Thank you. Thank you for good question. Yes. As per the views about the student got 4.2 main point 4. Then why did you drop again for the same mark? नहीं. See, हमारे टाइम पे स्क्रीनिंग था और मेंस था. तो स्क्रीनिंग में कुछ आई थी रैंक और मेंस में कुछ रैंक आई थी. This was 1 year only. I didn't take a drop. Does that help you? 2 एग्जाम होते थे. पहला ऑब्जेक्टिव होता था, फिर मेंस होता था. मेंस वाज सब्जेक्टिव एग्जाम. 3 papers were there: physics, maths, chemistry. Secondly, I want to ask how to remain emotionally intelligent and emotionally balanced in our life. Like we have already topics about emotional intelligence, but when it comes to day-to-day life, we are not that much emotionally balanced. So, what's your point on that? To remain emotionally balanced. We are emotional beings. There is no doubt about that. Lot of us think that we are very logical, very intellectual. हम सब है ना, सब ऐसे detached emotions. ऐसा नहीं होता है. Heavy research has been done. People vote because of emotions. Charles Darwin proposed a theory because of emotions. People, हमारे कोई किसी ने पूछा, अरे नोबेल प्राइज मैथ्स में क्यों नहीं है? बिकॉज उसकी एल्फ्रेड नोबेल की वाइफ भाग गई थी मैथमेटिशियन के साथ. तो उसे खुंदस आ गई, उसने नोबेल प्राइज मैथ्स में बनाया नहीं. एटलीस्ट आई हर्ड दैट एंड आई रेड इट समवेयर. इमोशन हो गए ना. दिस इज नॉट समथिंग लॉजिकल. सो वी आर इमोशनल बीइंग्स. इमोशन को मैनेज कैसे किया जाए? थोड़ा एक हायर पर्सपेक्टिव चाहिए in which we can observe emotions and not sit on emotions. Because when we observe emotion, when we are able to observe emotions ना, then we can utilize them when necessary. उत्सव का माहौल है, so we have to utilize our joyous emotions, right? उस समय हम ऐसे मातम नहीं बना सकते. But unless we observe, because we are so emotional beings, generally our intelligence at the bottom and mind is at the top. Mind हमें खींच ले जाता है. ऐसा ही होता है ना. तो इसलिए we need a disentanglement from mind.
Disentanglement from that. Now who has to be disentangled? Disentanglement का मतलब होता है थोड़ा सा अलगाव, थोड़ा सा अलग होना। जैसे एक कभी कभी क्या होता है, जैसे माला बंध गई ऐसे, राइट, नॉट बन गई, अब उसे डिसएंटेंगल करना, ऐसे बन गई ऐसे करने, और अभी बहुत अंदर एक क्या ऐसे माला अटक गई है, इतने नॉट्स बन गए हैं, हम देखने में तो कुछ लोग बड़े खूबसूरत दिखते हैं, अगर सबका मेंटल स्कैन लिखा जाए ना, ऐसे खड्डे हो रहे होंगे, ऐसे भूत जैसा हो रहा होगा। और एक्चुअली होता है, कोई लोग कहते हैं जब आप गुस्सा करते हो तो आप शेर जैसे हो जाते हो, अपना जो मेंटल बॉडी है, सटल बॉडी है, वो उसी का ही फॉर्म ले लेती है, क्योंकि माइंड मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। हम एक ही चीज कर सकते हैं एक बार, तो माइंड उसी के रूप में हो जाता है, बट वो इतना जल्दी जल्दी होता है, और उसको ऑब्जर्व करने के बजाय हम उस पर कैरी कर लेते हैं, हाँ, चले जाते हैं। तो डिसएंटेंगलमेंट करना है, लेकिन प्रश्न ये है किसे डिसएंटेंगल करना है? अपनी आत्मा को, आत्मा को उस ड्रीम स्टेट से हटाना है। और इसका इलाज चाहे हम बहुत सारे सेल्फ मोटिवेशन एवरीथिंग कर लें, चैंटिंग और स्पिरिचुअल टच या स्पिरिचुअल रस, रस मीन्स अ टेस्ट। सब लोग मजा चाहिए सबको, राइट, पिज्जा में टेस्ट आता है, मूवी देखने में टेस्ट आता है, वेब सीरीज, तो कुछ आनंद आता है, हृदय में कुछ कुछ होता है ना। तो जब स्पिरिचुअल प्रोसेस से हृदय में कुछ कुछ होने लग जाता है, दैट मीन्स कि समथिंग वी हैव रिसीव्ड टैंजिबल एंड द डिसएंटेंगलिंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड। ये आप एक्सपीरियंस करके देख लो, किसी को कीर्तन से होगा, किसी को प्रवचन से होगा, किसी को खाने से, तो सबको ही होता है प्रसाद खाने से। आज अभी मैंने सुना, पता नहीं वो सीक्रेट है या नहीं, शाही पनीर कुछ तो है, तो उससे लगता है बहुत लोगों को बहुत कुछ कुछ होगा, तो डिसएंटेंगलमेंट हो जाता है। और एक्चुअली प्रसादम खाने से होता भी है, बिकॉज प्रसादम इज मर्सी ऑफ कृष्णा, so we start becoming purified. This is mystical science, huh? It's like love. Why you love a particular person? I don't know. I just fell in love. That's why it's called fell in love. गिरना क्यों होता है? क्यों कुछ? There's no head. Everything is not mathematical equations in life, right? So similarly, we are talking about a mystical thing. Mystical, something जो कि physics से ऊपर है. Chanting and spiritual process help us realize कि मैं कुछ और हूँ मन से. Now I can observe emotions with ease. गुस्सा आया, क्यों आया? Let's analyze. या फिर जाने दो। और एक बार ऐसे हम मसल हमारी बनने लग गई ना, तो we'll become practice. Then we'll know गुगली कहाँ पे, कवर ड्राइव कहाँ पे, और फाइन लेग पे किसे मारना है। प्रैक्टिस। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। थोड़ा डिटैचमेंट हमें करना है आउटसाइड एसोसिएशन से, और अंदर स्पिरिचुअल एसोसिएशन में अभ्यास करना। दैट विल हेल्प अस। ट्राई फॉर 6 months, अदरवाइज मनी बैक। मोर क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शंस, does that help you, प्रभु? पेरेंट्स को लगता है कि चलो थोड़ी बहुत कर होगी, थोड़ी बहुत भगवद गीता पढ़ लिया, थोड़ा वगैरह कर, लेकिन सब ज्यादा नहीं करनी। हाँ, वैसे ऐसा तो होता नहीं है, सब ऐसे छोड़ छोड़ के साधु संत नहीं बनते हैं, तो बहुत रीजंस उनको दे सकते हो। मेरा पहला चीज ये कहने का होगा कि आप उनको प्रचार करने का ज्यादा प्रयास मत करो, क्योंकि प्राय यही होता है कि when we become little saintly we feel everybody around us so dear to us. वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट, बिकॉज वी हैव गॉटन समथिंग सो हाई, वी फील अरे यार ये लोअर क्यों है, इसको भी मिलना चाहिए। इतनी बढ़िया सुवालाल की कचौड़ी खाई है, इसको भी खाए। सुवालाल एक महोदय है कोटा में, बड़ी अच्छी कचौड़ी मानते हैं, बनाते हैं, तो जो भी उसकी कचौड़ी खाता है वो उसकी कचौड़ी के गुण गाता है और सबको उसी के यहाँ ही भेजता है। दैट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। We don't have to do with our near and dear ones because they know us in and out. They will say 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो बड़े चूहे खाए थे, अब हज पे क्यों निकल गए, राइट? So they will not take us seriously. इसलिए be a very good human being with them. Hole hole, you practice it nicely, you do your duties nicely, be a nice loving person. Rest, Krishna will take care. So many examples are there.
But those who have tried to punch, right, it has rebounded back. But those who have tried to be nice, parents have realized, it's a better human being, better son. What more I need? Try it out. So we take one last question and then Kirtan. Is that okay? Is that okay with everyone? Or you have more questions? It seems like you have. आपके पास है कुछ? बोलिए. तो आपने आपको बोला था कि अपने आत्मा को रीसेट करना, और रीसेट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट क्वेश्चन के लिए धन्यवाद और इतना सावधानी से सुनने के लिए धन्यवाद. देखिए, हमारी आत्मा चित्त है, वो मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है. जबकि अपना माइंड और बॉडी क्या है? स्पिरिचुअल है. तो ना, मटेरियल, माइंड और बॉडी मटेरियल है, अपनी आत्मा स्पिरिचुअल है. स्पिरिचुअल और मटेरियल चीज का मेल कैसे हो गया? इट्स लाइक ऑयल और वाटर मिलते नहीं है, राइट? अलग अलग रहते हैं, है कि नहीं? तो कैसे हो गया, राइट? विचार करो. हम तो स्पिरिचुअल हैं, लेकिन ऐसे तो हम तो अपने आप को बॉडी और माइंड ही मानते हैं, या ये मानते हैं कि मेरा ऐसा नाक नक्शा ही है, या मेरी ये उपाधियां ही हैं. तो इसमें हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं कि ये व्हाई इज दिस, ये क्यों होता है. दिस इज लाइक अ ड्रीम. इसे कहते हैं मिस आइडेंटिफिकेशन. आत्मा मन के साथ इतना पास आ गया है कि आत्मा सोचता है कि मैं मन हूं, और मन सोचता है मैं आत्मा हूं. आत्मा सोचता है कि अरे सब सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, मैं हिमांशु ही हूँ, मैं डॉक्टर ही हूँ. और माइंड क्या सोचता है? मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं ही सेंटर में हूँ. तो माइंड क्या ले लेता है? आत्मा की क्वालिटीज ले लेता है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए कोई मरना नहीं चाहता, जबकि सबकी वाट लगी हुई है. और मन, आत्मा क्या सोचता है कि मैं बस बॉडी हूँ, मैं बस वो थॉट्स एंड फीलिंग्स जिससे मैं बना हूँ, मैं बीजेपी का ही हूँ, पूरा टाइम बीजेपी का ही रहूंगा, या कांग्रेस का ही हूँ, राइट? वी स्टार्ट एसोसिएटिंग आवरसेल्व्स विद आवर उपाधिज. तो क्या हुआ? मिस आइडेंटिफिकेशन बिटवीन माइंड एंड सोल. इसको सबसे अच्छी एनालॉजी एक्सप्लेन करती है ड्रीम. क्योंकि मैं सो रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को रशिया में पुतिन के पास मान रहा हूं. एग्जाम्पल कैसे हुआ? मैं तो यही हूं. और ड्रीम में क्या बहुत रियल दिखता है ऑलमोस्ट, राइट? समटाइम्स तो होते तो हिल जाते हैं उठ के, तो हो सकता है ये सच. होता ही रहता है यार, क्यों उतना? मिस आइडेंटिफिकेशन, राइट? तो करना क्या है? बस उस मिस आइडेंटिफिकेशन को हटा देना है, उठ जाना है. इसे ही कहते हैं डिसएंटेंगलमेंट. और इसको कोई बुद्धि से नहीं हो सकता है. वी नीड स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, एंड वी हैव अ हैंड हेल्ड टेक्नोलॉजी. जैसे फोन है ना आपके पास, वी हैव अ हैंड हेल्ड टेक्नोलॉजी. तो इसको एक्चुअली ट्रू, ऑल स्क्रिप्चर्स, ऑल ट्रेडिशन से नाउ तो इस पे मेडिकल रिसर्च भी हो रहा है. So we are so fortunate that we have been given this technology. ये आपकी सहायता की इस उत्तर ने? बोलिए. तो आपने बोला कि जो माइंड है, जो मन है, वो अपने आप को आत्मा की क्वालिटीज लेने लगता है कि मैं अमर हूँ, अजर हूँ, मैं सेंटर हूँ, मैं फुल ऑफ नॉलेज हूँ, जबकि ऐसा नहीं. और जो आत्मा है वो नश्वर मानने लगा, अरे मैं तो मर जाऊंगा, अरे मैं तो डॉक्टर ही हूँ, मैं तो इंडियन ही हूँ. वो तो सब मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स ही है ना. समझ गए? तो बहुत विशेष, इसको हम समझ गए ना तो मजे आ जाएंगे. हम भी, वी आर ऑल्सो ऑन द जर्नी. ठीक है, और प्रश्न, रिफ्लेक्शंस? यस. हाँ, हाँ, नहीं, डिपेंड करो आप कंफर्टेबल हैं या नहीं. किसी किसी एनवायरनमेंट में ऐसा हो सकता है कि अननेसेसरली वाद विवाद छिड़ सकता है, तो फिर क्यों करने का है? उसमें हमारी इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं आर्ग्यूमेंट देने की? कभी कभी क्या होता है, हमारी स्ट्रेंथ और लॉजिक भी इतना नहीं है, हम टीका लगा दिया, सामने वाले ने कुछ बोल दिया, फिर हम उसके ऊपर चढ़ गए,
मतलब देन वी डोंट यूज रैशनैलिटी, वी यूज ब्लाइंड फेथ, फिर सामने वाला टर्न ऑफ हो जाता है। तो अगर लगा के हम प्रेम से एक्सप्लेन कर सकें तो ठीक है, नहीं लगाएं तो हम अंदर से अपने मन को तो टीका लगा सकते हैं, है कि नहीं? सो डिपेंड करता है। इफ यू कैन बी जस्ट लविंग टू पीपल एंड अंडरस्टैंड देम, देन इट्स टोटली फाइन। सामने वाला बोला है क्या ये क्या ये क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या बकवास है, तो आप बोलो ठीक है, इट्स योर बिलीफ, इट्स माय बिलीफ, दैट्स फाइन, लेट्स लीव दैट टॉपिक। लेकिन हमें क्या लगता है, अभी जूते मोजे खोल के इसी को ही रफा दफा करना है, अभी अभी फाइनल डिसीजन होना है कि टेस्ट 20 T20 की चैंपियनशिप कौन जीतेगा। नहीं, मुद्दे सॉल्व एक घंटे में नहीं होते हैं, समय लगता है चीजों को। तो अगर इतना विवेक और मेच्योरिटी है हमारे पास तो लगाएं। अगर लगता है कि ये फालतू प्रश्न पूछ लेगा, मैं अपना काम करने आया हूँ उसको भी डिस्टर्ब करेगा, मतलब सिंपल सी बात। टीका लगाने या नहीं लगाने से गारंटी नहीं है कि मैं हृदय से भक्त बन जाऊं। टीके से हेल्प होगी, सुरक्षा कवच है, लेकिन अब अगर अंदर से विचारों का परिवर्तन नहीं हुआ है, देन इट मे बी जस्ट अ रिचुअल, इजंट इट? डज दैट हेल्प यू? तो बिल्कुल लगाएं, और लोगों को पता भी होना चाहिए कि हमारी संस्कृति सभ्यता अभी भी अलाइव है। लेकिन फिर एक मेच्योरिटी होनी चाहिए, व्हेन टू गो इनटू आर्गुमेंट डिस्कशन, व्हेन टू पुल बैक वेरी हम्बली। नहीं तो हम क्या करते हैं, देख क्या आजा बैठ जा अभी ही खेलने, नहीं उससे कुछ नहीं होता है, वो चढ़ जाता है, उसको बैड इंप्रेशन मिल जाता है, फिर वी टर्न ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ बीइंग इनवाइटिंग टू देम, है कि नहीं? इसके विषय में ध्यान रखें। क्वेश्चन? जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि पॉइंट हो रही है, तो जैसे दफा दफा करना होता है, लेकिन एक वो पॉइंट होना चाहिए ना, जैसे कि एक गैप होना चाहिए कि हमें समझ में आता है कि नहीं अभी यहाँ पे रुक जाना चाहिए, लेकिन वो हमारे दिमाग में आता है कि तो ऐसे देखो, आर्ग्यूमेंट्स पे तो नहीं घुसना ही चाहिए प्राय, और आरंभिक अवस्था में तो नहीं, क्योंकि हमारा इतना नॉलेज भी नहीं है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी नहीं। ये तो फर्स्ट एक्सियम है ये। दूसरा ये है कि हमें समय की बहुत आदर करना चाहिए। टाइम इज द ओनली रिसोर्स वी हैव। तो आर्ग्यूमेंट में बहुत समय चले जाता है, फिर उस समय ही नहीं जाता, उसके बाद भी दिमाग में घूमता है क्यों का। तो अगर समय का हमें ध्यान रहेगा, वी हैव अ प्रायोरिटीज राइट, देन वी विल नॉट वेस्ट टाइम। रूप गोस्वामी के पास आए थे एक दिग्विजयी पंडित, ये साइन है, अभी मैं आपको डिफीट करूंगा और फिर इस पे साइन आपसे साइन करवाऊंगा। रूप गोस्वामी, ऐसी बात है, अभी साइन कर दो। क्यों? अरे आई एम राइटिंग बुक्स हियर, आई डोंट हैव टाइम। सो इफ दोज आचार्यस कैन डू इट, those teachers can do it, then we can have little bit maturity when to enter, when not to enter. और बेस्ट इज उनकी सुन लो, और फिर कोई ऐसे वरिष्ठ वैष्णव है उनसे अपना थोड़ा मन क्लियर कर दो कि आई हैव दैट। देन फिर अभी जब सही मौका मिला, व्हेन द टाइम इज राइट, व्हेन यू हैव द राइट कॉन्शियसनेस एटीट्यूड, और वो भी अच्छे मूड में, तब थोड़ा आप जोर का झटका अच्छे से लगा सकते हो। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? डियर वाली स्टोरी से किसका रिलेशन? हाँ, यही ना कि वो डियर में इतने अटैच हो गए कि अपनी प्रैक्टिसेस को ही भूल गए, और अगले जीवन में क्योंकि वो डियर के थॉट में ही थे तो डियर बन गए। तो उसका डिवोशन से ये है कि लाइक दैट अगर हम एसोसिएशन में ही नहीं है, क्योंकि अगर भरत महाराज एसोसिएशन में होते तो कोई उन्हें सावधान कर देता, लेकिन अगर हम एसोसिएशन में नहीं है तो हमारे लिए ऐसे बहुत सारे डियर्स आ सकते हैं, है ना? कभी करियर डियर हो गया, कभी सो मेनी थिंग्स विच कैन जस्ट डिस्ट्रैक्ट अस। बट अगर डिवोटी एसोसिएशन में होंगे तो बोलेंगे कि प्रभु आप अपने बिग वेक्टर पे तो पेंट मार रहे हो, और छोटे छोटे वेक्टर को बहुत बड़ा कर लिया आपने। हो जाता है लाइफ में कभी कभी ऐसे रैंडम एंथू जागृत हो जाता है लाइफ। तो फिर डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज, मेंटर्स, दे हेल्प अस कि वेट अ मिनट, यू माइट वांट टू फोकस, गिव इट्स फोकस, बट आप उसको भूल रहे हो।
सब आपको समझ में आ गया रिलेशन? यस। हाँ हाँ, हम सब स्पेशल हैं, पहले तो ये मान के चलो, क्योंकि हम क्या है, आत्मा है। आत्मा is equally dear to Krishna. All of us are Atma, and Krishna has given us unique ability, just that we are not able to discover it. There are people जो कि दिव्यांग होते हैं, but they can participate in Olympics and do it. There are people who are maybe blind, but then they get jobs inspiring other blind people. तो भक्ति में तो हृदय की बात है, उसके लिए तो कुछ कमी है ही नहीं। तो ये आपको पहले रखना है कि हम स्पेशल हैं, और कृष्ण की नजरों में तो बहुत स्पेशल है, इससे बहुत सुकून मिलता है। ओके, आई डोंट हैव टू गो। फिर अननेसेसरली हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक फिश को बर्ड से कंपेयर नहीं किया जा सकता, हर के अलग अलग चीजें। दूसरा, असूया नहीं करनी चाहिए। असूया मतलब गुणेशु दोषा आविष्करणम। वी इन्वेंट दोष वेयर देयर आर गुण। See the good qualities in everybody and then learn and then implement in you. हम क्या करते हैं, उनको कंपेयर करने लग जाते हैं, फिर उसमें दोष करने लग जाते हैं, ज्यादा ही बन रहा है ये। अरे उसको गुण मिले हैं, वो यूज कर रहा है। Why are we pulling him down in our mind? If not physically, we pull him down in the mind. ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी सबकी क्षमताएं हैं, हम उसे डिस्कवर कर सकते हैं, और किसी मेंटर के साथ अगर आप रहोगे, लोकल मेंटर जो आपके साथ समय बिताते हैं, तो ही में हेल्प यू डिस्कवर। आप इसमें अच्छे हैं, आप इसको और डेवलप कर सकते हैं। हर के पास यूनिक एबिलिटी है, राइट? सहायता मिली इससे तो चल दी एंड है। मैं आपको बार बार आइडेंटिफाई कैसे करूं कि हम आत्मा हैं, तो जनरली हम एक शरीर है। हाँ, लेकिन थ्योरेटिकली में पता है कि हम आत्मा है, लेकिन हम भूल जाते हैं बात को। उससे अच्छा एक माध्यम यह है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग वी आर आत्मा, वी थिंक जीवेर स्वरूपो कृष्णेर नित्यदास, कि हम कृष्ण के एक अंश हैं। सो दैट्स इन फैक्ट a wonderful meditation which our acharyas have told us. Actually, we are very tiny, we are special, but we are tiny. So हम अहंकार में नहीं रहना चाहिए, और spiritual practices will reinforce this realization, and one day it will become theory to practice. Spiritual practice. Does that help you? Kirtan? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.